Hello everyone, I am Krishna Agrawal and we are back with the summary lecture of our subject Basic Entrepreneurship for Engineers of week 4. In this video we will be discussing the summary of what we are taught with in the class. तो हमने basically इस हफ्ते we studied about different types of market. What are the different market types? Okay, we studied about different types of market. Let's see this. So there are four types of market, namely existing market, resegmented or niche market, new market, or clone market. Okay, and accordingly, first we have asked to identify our problem, that our problem falls under which type of market. So as I have discussed, my problem falls under resegmented or niche market. Basically, we are trying to resegment the market in this according to my problem. So let's study different type of market one by one. So the first one is existing market. Okay. So it says that when investors and entrepreneurs go after an existing market, the advantage is that there's little or no market. So basically first let's understand what is existing market. Existing market is something which already exists. Okay. By the name it is very clear that this type of market already exists. For example, let us say the market of shoes or footwear industry, footwear market. Okay, for example, shoes. If a person tries to build a company in shoes, in the shoes or footwear side, then he or she will be entering an existing market which is already existing. So, and let's see what are the pro and cons of this market. So, when investor and entrepreneurs go after an existing market, the advantage is that there's little or no market risk. Okay, so basically in this type of market, we have an advantage where there is little or very less market risk. In this type of market, competitors exist, customers want and need better performance. Definitely, that is why they will be choosing your product over your competitor's product. Okay, technology is usually the driving factor. And next is positive thinking is driven by product and how much value customer place on its features. So basically, the better product you will be launching, more the customer will be attracted to it. The risk is that competitors are too dumb or slow. These are the things that these are the thinkings which are basically risk factor. There is no chasm that you need to fill. There chasm here means there is no gap in the market that we have to fill. Basically, we have to launch something better product which customer will feel delighted after using it. Let's see an example here. A venture trying to set up an e-commerce site like Amazon is trying to enter an existing market. Okay, if a venture is trying to set up an e-commerce like Amazon, then it is an existing market because there are already uh, lot of e-commerce platforms like Amazon, Flipkart, Snapchat, and all those things. Sorry, like Mintra and all those things. Okay, नाउ लेट्स सी न्यू मार्केट. न्यू मार्केट नाम से ही समझ आ रहा है कि नया मार्केट है. इसमें अगर हम घुसना चाह रहे हैं, दिस इज एंटायरली न्यू, और इसका कोई एग्जिस्टिंग मार्केट पहले से है नहीं, कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में हमें मिलेगा नहीं इस टाइप की चीज़ों में. न्यू मार्केट, लेट्स से फॉर एग्जांपल जब अमेजोन आया था तो वो एंटायरली न्यू था. जब वो अपनी बुक सेलिंग सर्विसेज लाया था अपने मार्केट में, लाया था मार्केट में, तो वो एंटायरली न्यू था. तो जब वो आ रहा था तब वो एज अ न्यू मार्केट आया था. ओके, सो ये एक एग्जांपल है न्यू मार्केट का. इसमें क्या क्या होता है, लेट्स सी. इसमें कस्टमर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, सो रिवेन्यू जनरेशन टेक्स ईयर्स. क्योंकि अब नया मार्केट है तो कस्टमर्स भी इसके नहीं है, तो पहले आपको कस्टमर्स बिल्ड करना पड़ेगा, ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, तो रिवेन्यू जनरेशन में टेक ईयर्स. नेक्स्ट इज मार्केट साइज इज जीरो. मार्केट का साइज ही नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई मार्केट है ही नहीं यहाँ पे. नेक्स्ट इज कस्टमर नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ देयर नीड्स. कस्टमर को उनकी नीड्स के बारे में अवेयर कराना पड़ेगा इफ़ वी वांट कि हमारा जो मार्केट है हम मार्केट कैप्चर कर सकें. ओके, नेक्स्ट इज यू मस्ट कंसिडर व्हाट फैक्टर्स कैन यू क्रिएट दैट हैज़ नेवर बीन ऑफर्ड.
हमें ऐसे फैक्टर के बारे में सोचना है जो हम क्रिएट कर सकते हैं जो कभी ऑफर ही नहीं करे गए। तभी तो जो नया पर्सन है वो हमारे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करेगा, तभी हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, कंज्यूमर बढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट इज द कैश इज बिगेस्ट हियर बिकॉज यू विल ओनली बी सेलिंग द वेरी अर्ली एडॉप्टर्स। कैश मीन्स द गैप, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट शुरुआती टाइम पे सिर्फ उन्हीं को सेल कर रहे होंगे जो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे। अर्ली अडॉप्टर्स हियर आर दोज पीपल जो कोई भी प्रोडक्ट को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, दोज आर नोन एज अर्ली अडॉप्टर्स। ओके, उन्हें अर्ली अडॉप्टर्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले तो स्पेस एक्स, जब स्पेस एक्स नया नया आया था, मतलब स्पेस एक्स जब आया था तो वो नया मार्केट था अपने आप में। उसके जैसा कोई भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी थी नहीं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सारी स्पेस एजेंसी गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी और स्पेस एक्स प्राइवेटली अब मार्केट में लॉन्च हुआ था। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था न्यू मार्केट का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप विच इज रीसेगमेंटेड मार्केट। रीसेगमेंटेड मार्केट क्या होता है, लेट्स सी। रीसेगमेंटेड मार्केट जो होता है एक हाइब्रिड होता है बिटवीन न्यू मार्केट एंड एन एग्जिस्टिंग मार्केट। ओके, ये एक हाइब्रिड होता है बेसिकली नया मार्केट के बीच, नया मार्केट और एग्जिस्टिंग मार्केट के बीच, इन द सेंस दैट इट इज न्यू मार्केट क्रिएटेड फ्रॉम स्मॉल सेगमेंट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट को ही लेकर उसके कुछ पॉइंट्स में, उसके कुछ तरीकों में बदलाव, चेंजेस लाकर ही एक नया मार्केट टाइप का हम क्रिएट करते हैं। ओके, उसे बोलते हैं रीसेगमेंट मार्केट। बेसिकली जो मार्केट है लेकिन उसका रीसेगमेंटेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हमने देखा था जो फ्लिप वाले फ़ोन्स आए थे। ओके, तो फ़ोन्स पहले से एग्जिस्ट करते थे बट फ्लिप वाले फ़ोन्स ने एक नया फीचर ऐड करा जिसके कारण वो पॉपुलर हुआ। जो फ्लिप वाले फ़ोन आए थे वन प्लस के या जो जो भी थे। ओके, सो बेसिकली हम कुछ ऐसा नया फीचर ऐड करते हैं, नया कुछ फीचर रिमूव कर देते। फॉर एग्जांपल हमने एयरलाइंस में देखा था, एयरलाइंस में जो चीप एयरलाइंस बना रहे थे कंपनी, वहाँ हमने देखा था कि वो बहुत चीप प्राइस पर भी ट्रैवल करा पा रहे थे क्योंकि उन्होंने जो खाने पीने की सुविधा थी वो कम कर दी, लग्जरीनेस कम कर दी। तो ये भी एक टाइप का रीसेगमेंटेड मार्केट का एग्जाम्पल है। तो दिस फीचर ऑफ द फीचर ऑफ दिस मार्केट इज, फीचर क्या होता है, एक तो कॉस्ट आपको कम रखनी पड़ेगी, लो कॉस्ट होगा। एक तो सॉरी कॉस्ट कम होगा क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट है, आप खुद से कुछ नया नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ कुछ चीज़ एडअप कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो कॉस्ट कम लगेगा। न्यू निश होगा, न्यू निश मीन्स न्यू कस्टमर सेगमेंट होगा। ठीक है, न्यू कस्टमर, न्यू हमारे पास कस्टमर होंगे इसके इस सेगमेंट के अंदर। In these market types, evaluate factors that your industry has competed on and on eliminate those. Basically इसमें हम यही करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो किन फैक्टर्स पे काम कर रही है हम वो देखते हैं और उसमें कुछ चीज़ें एडअप या रिमूव करते हैं ताकि थोड़ा और बेटर प्रोडक्ट कस्टमर के सामने दिया जाए। इसका एक एग्जांपल यही एयरलाइंस का जो मैंने अभी डिस्कस करा। साउथ वेस्ट एयरलाइंस took on the airline industry by bringing up the tradition hub and spoke model and providing just very limited service but for an extremely low price. सर्विसेज कम कर दी गई थी बट एट वेरी लो प्राइस। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो गया जो रेगुलरली ट्रैवल करते हो क्योंकि उनको लग्जरी नहीं चाहिए होती, उनको कम प्राइस पे ट्रैवल करने मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज लेट्स कम टू क्लोन मार्केट। क्लोन मार्केट क्या होता है देखते हैं। Clone market, in a clone market, customers are known because you are copied, because you have copied an existing market. Okay, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, कॉपीड एन एग्जिस्टिंग मार्केट। ये कोई न्यू मार्केट नहीं है, ये कोई हम एग्जिस्टिंग मार्केट में चेंज नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली हम कोई एग्जिस्टिंग मार्केट पहले से किसी पर्टिकुलर रीजन पे है, उस रीजन में जो आइडिया चल रहा है, जो मार्केट चल रहा है, उसको वो आइडिया को किसी और जगह पे कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ऊबर आया था यूएस में तो उसके बाद इंडिया पे भी हमने वो कॉपी करना शुरू करा, क्लोन बनाया, क्लोन मार्केट शुरू करा। लाइक एआई आया किसी दूसरे कंट्री में तो उसका भी हमने कॉपी करके इंडिया पे मार्केट बनाया, उसे हम कहते हैं क्लोन मार्केट। ओके, बेसिकली हम इसमें कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पे मार्केट इस्टेब्लिश करते हैं अपना। दिस मार्केट टाइप अडेप्ट्स अ फॉरेन बिजनेस मॉडल टू लोकल कंडीशन।
ओके, यही चीज़ है कि फॉरेन बिजनेस का कुछ, फॉरेन में कुछ बिजनेस मॉडल रहता है, उसको लोकल कंडीशन में हम अडॉप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस आता है, लैंग्वेज का चेंज आ जाता है, कल्चर का चेंज आ जाता है, इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, और लोकल कुछ रेगुलेशन में चेंज आता है। तो बस यही चीज़ें होती है, इसमें आती है चेंज। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, टिपिकली ग्रेटर देन 100 मिलियन। 100 मिलियन मतलब कितना हो गया, और 10 CR हो गया अप्रोक्सीमेटली। ओके, 10 CR, क्योंकि इसमें कस्टमर चाहिए आपको, क्योंकि आप क्लोन बनाना चाह रहे हो, अगर कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो फिर लॉस होने का डर रहता है इसमें। एग्जांपल के तौर पे, मोस्ट कंट्रीज हैव लोकल वर्जन ऑफ ऊबर टुडे। ऊबर ऊबर का लोकल वर्जन, एंड दे हैव ट्राइड टू क्लोन द बिजनेस मॉडल बाय मेकिंग सूटेबल एडजस्टमेंट फॉर लोकल कंडीशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। अगला था मार्केट सेगमेंटेशन। हमने मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करा था, वो उसे हम कह रहे थे मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग योर टारगेट मार्केट इनटू अप्रोचेबल ग्रुप्स। जो हमारा टारगेट मार्केट है उसको हम अप्रोचेबल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम सबसेट बनाते हैं ऑफ मार्केट का बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक नीड्स, प्रायोरिटीज, कॉमन इंटरेस्ट, और कुछ साइकोग्राफिक और बिहेवियरल क्राइटेरिया का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बिहेवियर क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। 4 टाइप के हम मार्केट सेगमेंट्स देखे थे, दैट इज डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड बिहेवियरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था 4 टाइप के। डेमोग्राफिक में बेसिक से जो फैक्टर्स आते हैं वो होते हैं अपने एज, जेंडर, एथनिसिटी, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन, प्रोफेशन। ठीक है, कुछ ये सारे फैक्टर आते हैं डेमोग्राफिक के अंदर। अगले आते हैं साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में आते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हॉबीज, लाइफ गोल्स, वैल्यू, बिलीफ, लाइफ स्टाइल। जियोग्राफिक में वही कंट्री, रीजन, सिटी, ये सारी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बिहेवियरल में किसी पर्टिकुलर जगह पे लोगों की स्पेंडिंग हैबिट कैसी है, परचेसिंग हैबिट कैसी है, ब्राउजिंग हैबिट्स कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो मार्केट का सेगमेंट है वो किस पे, मतलब मार्केट का क्या सेगमेंट होगा, आपका लोगों के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था फाइंडिंग योर निश। फाइंडिंग योर निश मतलब हमें अपने अर्ली अडॉप्टर्स खोजने हैं। निश का मतलब होता है यहाँ पे हमें अपने अर्ली अडॉप्टर्स को फाइंड करने हैं। ओके, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली अडॉप्टर्स। ओके, आइडेंटिफाइंग योर निश, क्या पॉइंट्स है इसमें, अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉम्प्ट्स कस्टमर टू वांट टू बाय योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कस्टमर को क्या टेम्प्ट करता है हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करने में, लाइक हमारा यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या है जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स लेना चाहता है। उसके बाद डेवलप माई मेंटल पिक्चर ऑफ योर कस्टमर, अक्वायर फोकस्ड नॉलेज अबाउट योर मार्केट। ये चीज़ें हमें करनी होती है। ओके, ये लास्ट टॉपिक था जो हमने देखा था इस वीक, एस्टिमेट योर मार्केट साइज। हमें मार्केट साइज हमने एस्टिमेट करना है। तो ये 3 टाइप के कैटेगरी में डिवाइडेड था, टैम, सैम एंड सोम। यहाँ पे एक कर्व बनाया था हमने, एक ग्राफ बनाया था इसके बीच टैम, सैम और सोम के। टैम क्या होता है, सबसे हम बड़े से शुरू करते हुए छोटे को देख रहे हैं। टैम होता है हमारे पास टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और टैम रिफर्स टू टोटल मार्केट डिमांड। ठीक है, ये बेसिकली टोटल मार्केट है जो एग्जिस्ट करता है, जिस जिस जो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस टोटल मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसके नीचे आता है सैम। सैम क्या होता है, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, कि उस पे से हम कितना में सर्विस को एड्रेस कर सकते हैं, हमारी सर्विस हम कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एस्टिमेट्स द पोर्शन द टैम दैट यू कैन एक्वायर, जो हम एक्वायर कर सकते हैं, जो इंक्लूडिंग हमारी लिमिटेशन, हमारी लिमिटेशन को जानते हुए हम कितना एक्वायर कर सकते हैं, वो होता है टैम, सॉरी वो होता है सैम। इसके नीचे हम आ जाते हैं सोम पे। सोम क्या होता है, serviceable obtainable market determines that how many customers from the SAM would realistically purchase your products। कि जब सैम में हमने एक्वायर कर दिया तो सैम के बाद कितने रियलिस्टिक कस्टमर होंगे जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वो होता है सोम।
और इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं लाइक नेचुरल बैरियर्स, जैसे कि डिस्टेंस या लैंग्वेज हो गया, लिमिटेड कैपेसिटी हो गया, प्रोडक्शन लाइक हम कर नहीं पा रहे किसी कारण से, लॉस ऑफ मार्केट शेयर हो गया ड्यू टू कंपिटिटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दो टाइप की अप्रोच देखी थी कि मार्केट साइज को कैलकुलेट करते वक्त हमें कैसा अप्रोच अपनाना चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच अपनाना चाहिए या बॉटम अप अप्रोच अपनाना चाहिए। तो किसी रिसर्च में ये माना गया है कि जो बॉटम अप अप्रोच रहता है वो एस्टिमेट करता है एक्चुअल यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट को एंड हाउ मैनी वुड देम रियलिस्टिकली बिकम कस्टमर्स। तो ये एक बेटर अप्रोच है मार्केट साइज आइडेंटिफाई करने के लिए रेदर देन टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, एंड ये तो हमने पिछले वीक ही देख रखा था, इनोवेटर्स अर्ली अडॉप्टर्स, एक ग्राफ था हमारे पास कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं तो पहले इनोवेटर्स होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर मेजॉरिटी अडॉप्ट करती है उसको, फिर लेट मेजॉरिटी अडॉप्ट करती है, उसके बाद ये लैग गार्ड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी जो हमने इस वीक स्टडी करी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और मिलेंगे हम अगले वीक के समरी लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।